Hello friends, myself Rasmi Patel. Today we continue our lesson number 2, Nelson Mandela Long Walk to Freedom. In this video, we continue our lesson number 2, part number 3rd. Before we start our lesson, I take a few words and form a sentence. I tell first. So, I take a first word, obligations, and form a sentence. First sentence, it should be your choice and not an obligation. It should be your choice and not an obligations. As well as isolated word and form a sentence. Maybe it was an isolated incident. Maybe it was an isolated incident. Next words, transitory and a form of sentence. In many cases, these are transitory and disappear without treatment. I repeat, in many cases, these are transitory and disappear without treatment. Transitory means not a permanent. Next word, bold. The choice was certainly a bold one. I repeat, the choice was certainly a bold one. Next, prejudice. The chance to erase just a little more prejudice from the world. The chance to erase just a little more prejudice from the world. All the sentence copy in your notebook and form your own sentence using these underlined words. We continue our lesson. I will read a lesson for you and explain a difficult meaning. We start our lesson. In life, every man has twin obligations. Obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community and his country. Obligations means responsibility या ड्यूटी. तो हर एक इंसान की लाइफ में दो ऑब्लिगेशंस होती है, ट्वाइन ऑब्लिगेशंस होती है, ड्यूटीज होती है, एक अपनी फैमिली की ओर और एक अपनी कंट्री की ओर. इन अ सिविल एंड human society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. Inclinations means natural tendencies of behavior. तो इन सोसाइटी हर एक इंसान की दो ऑब्लिगेशंस होती है और दो ऑब्लिगेशंस को वो फुलफिल करता है अकॉर्डिंग टू हिज ऑन इंक्लिनेशन, अपनी आदत से और अपनी एबिलिटीज, अपनी ताकत से वो ये दो ऑब्लिगेशंस फुलफिल करता है. But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. But country like a South Africa जैसी कंट्री में बोथ ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करना, बोथ ऑब्लिगेशन को पार करना मीन्स निभाना एक जो कार्य है वो कैसे इम्पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ पे अपार्टिड सिस्टम चलता है. अपार्टिड सिस्टम जिसमें वाइट रूल्स चलते हैं, इसलिए लाइक नेल्सन मंडेला मीन्स ब्लैक पीपल, उसको ये जो दो ऑब्लिगेशन है अपनी फैमिली की और अपनी कंट्री के लिए कुछ भी करना हो तो दो साथ में नहीं कर सकते. जो कंट्री के लिए करना चाहता हो उसे फैमिली को लीव करना होगा या फिर वो कंट्री के लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा. इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्ट टू लिव एज अ human being was punished and isolated. A man of color means
जिस पीपल का कलर वाइट नहीं हो वो मीन्स अ ब्लैक पीपल इन साउथ अफ्रीका कंट्री में, जो जिसका कलर वाइट नहीं है और जैसे उसे डार्क कलर हो या फिर ब्राउन कलर हो, तो ऐसे पीपल को एक ह्यूमन, एक अपनी ज़िंदगी जीना, एक लाइव एज अ ह्यूमन बीइंग की तरह माने ऐसे ज़िंदगी जीने की परमिशन नहीं है। जो ये ऐसे ज़िंदगी जीना चाहता है तो उसे क्या किया जाता है, पनिश किया जाता है या फिर आइसोलेटेड किया जाता है। आइसोलेटेड मीन्स सेपरेट किया जाता है। तो ऐसी ज़िंदगी जीने की वो काबिल रखते हैं तो उसे पनिशमेंट दी जाती है या फिर उसे आइसोलेटेड किया जाता है। इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वॉज इनवेंटेबली ripped from his family and his home and was forced to live life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. Inevitably means unavoidably. Existence of secrecy means life is strange, or rebellion means revolt. तो जो साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में कोई भी एक पर्सन बोथ ऑब्लिगेशंस को निभाना चाहता है तो उसे इस फैमिली से अलग किया जाता है, फैमिली से अलग होना होता है, या फिर उसकी जो लाइफ है वो स्ट्रेंच रहस्यमय हो जाती है और वो विड्रॉ हो जाता है, रिवॉल्ट हो जाता है। तो नेल्सन मंडेला भी वैसे ही हो। तो हमने आगे भी देखा कि साउथ अफ्रीका कंट्री में अपार्थाइड सिस्टम चल रहा है, तो उसकी वजह से जो नेल्सन मंडेला है उसको 27 ईयर्स की प्रिजन मिली थी, जेल में रहना पड़ा था उसे, क्योंकि वो अपने पीपल के लिए वो उस वाइट रूल्स के खिलाफ गए थे, उन्होंने विड्रॉ शुरू किया था। I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfill my obligation as a son, a brother, a father, and a husband. Prevented means ढोंगन, okay? तो आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल, तो शुरुआत में तो वो अपनी फैमिली के साथ उसको भी फ्रीडम थी, वो ऐसे ही सोच रहा था, पर जैसे ही उसको पता चला कि जो फ्रीडम है उसके पास नहीं है, वो अपने देश की, अपने लोगों की क्या को आज़ाद कराना चाहता था, तो उसे ये जो ऑब्लिगेशंस है वो फुलफ़िल करनी है। तो जो अपनी कंट्री के लिए वो जो ऑब्लिगेशन फुलफ़िल कर सके तो वो अपने सन्स, ब्रदर, फादर और हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफ़िल नहीं कर सकते, और वो करना चाहे तो वो अपने पीपल के लिए, अपने कंट्री के लिए अपने ऑब्लिगेशंस फुलफ़िल नहीं कर सकते थे। आई वॉज नॉट बॉर्न विथ अ हंगर टू बी फ्री, आई वॉज बॉर्न फ्री, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। तो जब भी किसी बच्चे का बॉर्न होता है तो फ्रीडम के लिए हंगर नहीं होता है, उसे पता ही नहीं चलता कि वो उसे फ्रीडम मिली है या नहीं है, वो तो ऐसे ही होता है। तो जैसे नेल्सन मंडेला भी कह रहा है, जब मेरा बॉर्न हुआ था तो मैं भी फ्रीडम के लिए हंगर नहीं था, मैं तो एक आज़ाद था। फ्री टू रन इन द फील्ड नियर माई मदर्स हट, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम that run through my village, free to roast my meals under the stars and ride the broad back of slow moving bulls। तो जैसे छोटे बच्चे करते हैं वैसे ही नेल्सन मंडेला जब भी अपने चाइल्डहुड में था तब वैसे ही करता था, क्योंकि वो भी एक फ्री था, वो भी फ्रीडम के लिए हंगर नहीं था। तो छोटा बच्चा था तब वो अपनी मदर की जो हट थी उसके फील्ड में वो इधर से उधर घूमता रहता था सराउंडिंग एरिया में। उसके घर से, उसके विलेज से एक रिवर पास होती है, उसके अंदर वो स्विम करता था, और जो अंडर द स्टार्स मीन्स नाइट टाइम में वो रोस्ट मेल्स थे, मीन्स एक ग्रैंड से वो उसको भून के खाया करते थे, और स्लो मूविंग बुल्स जो उसकी बैक पे बैठ के वो राइड भी किया करते थे। तो ये जो बचपन था उसका, चाइल्डहुड था, उसमें वो ऐसे ही हरकत करते जैसे बच्चे करते। एज लॉन्ग एज आई obey my father and abide by the custom of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God।
बाय मीन्स फॉलो द रूल्स, और कस्टम मीन्स ट्रेडिशंस। एज लॉन्ग एज, तो वो जो हम बच्चे होते हैं तो हमारी लाइफ में जो हम हमारे फादर्स कहते हैं वैसे ही हम करते हैं, या फिर हमारी जो ट्राइब, हमारे जैसे रिलीजन्स है तो उसके अंदर जो कस्टम्स और ट्रेडिशंस होते हैं उसे हम फॉलो किया करते हैं। पर हमें ये नहीं वो पता चलता है कि उसके आगे क्या है। तो वो नेल्सन मंडेला वही कह रहे हैं कि जैसे फादर कह रहे थे या हमारे ट्राइब के जो कस्टम्स थे उसे हम फॉलो किया करते, पर इसमें कोई स्ट्रगल नहीं थी जैसे गॉड्स या मैन ने जो बनाई हुई है। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. Illusion means something that appeared to be real but it is not, means हम कह सके भ्रम। It was only when I began to learn that my बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। तो वो जो फ्रीडम के लिए जी रहा था, जो ही देख रहा था, वो उसका भ्रम था, वो रियल नहीं था जो उसे फ्री। पर बाद में उसे पता चला, जब वो यंग एज में आया तो उसे पता चला कि उसकी जो फ्रीडम्स थी वो उससे ले ली गई है। डेट आई बिगन टू हंगर फॉर इट, तब जाके वो मेरे अंदर जो फ्रीडम की जो हंगर हुई तो वो शुरू हुई। At first, as a student, I wanted freedom only myself, the transitory freedom of beginning able to stay out at night, read what I please, and go where I chose. Transitory. Transitory means not a permanent. तो जो नेल्सन मंडेला की यंग लाइफ थी वो यंग एज में थी, तब उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगने लगे। उसको जो फ्रीडम थी वो परमानेंट नहीं थी। जब भी वहाँ जाना चाहता वो वहाँ जा नहीं सकता था। तो वो अपनी फ्रीडम के लिए वो अपनी फ्रीडम इष्टा था। तो वो क्या, तो वो अपनी फ्रीडम में, तो उसे वो कहीं पे भी नाइट में जाना हो तो वहीं पे जाने से उसे रोका जा सकता था। जो भी वो पढ़ना चाहता है उसे पढ़ने से रोका जा सकता है। और वो जो उसे पसंद है वो भी नहीं करने दिया, उसकी पसंद के क्लोथ्स भी उसे पहने नहीं दिए जाते थे। तो ये सब कुछ जो थी वो जो फ्रीडम थी वो परमानेंट नहीं थी। नेल्सन मंडेला क्या करिए, वो जो उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगी हुई थी वो परमानेंट नहीं थी। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहानिसबर्ग आई अर्न फ्रॉम द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, ऑफ अर्निंग माई कीप, ऑफ माई मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, the freedom not to be obstructed in a lawful life. Potential means possibility, yearn means desire, strong desire। तब जो नेल्सन मंडेला थे वो एक जोहानिसबर्ग में रहते थे, अब उसकी यंग एज में, तो वो कहना चाहता है कि जो फ्रीडम है वो पोटेंशियल पॉसिबिलिटी, पर वो जो कुछ भी कमाते हैं तो उसके पास जो पैसे होते हैं, अर्निंग मनी, वो अपने पास रखना चाहते हैं। ओके, जिसे चाहे उसे मैरिज करना चाहते हैं, अपनी एक फैमिली बनाना चाहते हैं। तो ये जो फ्रीडम थी कि उसके ऊपर कोई बंधन ना हो सके, उसे कोई रोक ना सके, ऐसे उसे फ्रीडम चाहिए थी। बट देन आई स्लोली सो डेट नॉट ओनली was I not free, but my brother and sister were not free। तो नेल्सन मंडेला गए, बाद में उसे पता है आई स्लोली सो डैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री। तो उसे बाद में देख रहे हैं कि मैं ही हूँ जिसे फ्रीडम नहीं मिली। मेरे ब्रदर्स और मेरे सिस्टर्स मीन्स उसके जो पीपल्स है, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज के पीपल्स है, उसके पास भी कोई फ्रीडम नहीं थी। आई वॉज सो डैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did reduce। curtail means reduce। तो मैं देख सकता हूँ कि जो फ्रीडम है वो हमारे ब्लैक पीपल जो उसके पास क्या कही गई है, रिड्यूस कही गई है। हम जैसे मेरे पास नहीं वैसे दूसरे के पास नहीं। सो दैट इज
that is when I joined the African National Congress, and that it is when the hunger from my own freedom become the greater hunger for the freedom of my people. तो उसके बाद उसको पता चला कि जो फ्रीडम्स है उसके पास उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है। ओके, तो उन्होंने उस बाद में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया, पॉलिटिक्स में आगे बढ़े, और वो चाहता था कि वो अपनी फ्रीडम ले, पर उसे पता चल बाद में वो अपने पूरे पीपल, अपने पूरी कंट्री को वो फ्री करवाना चाहता था, आज़ाद करवाना था। तो उन्होंने अपार्टी सिस्टम के विरुद्ध लड़ाई शुरू की, वो उसके अगेंस्ट गए। इट वॉज दिस डिज़ायर फ्रॉम द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drew a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk. तो ये जो नेल्सन मंडेला थे वो अपार्टीड सिस्टम के विरुद्ध लड़ने लगे, तो अपने पीपल को वो आज़ाद करवाना चाहते थे। तो इसीलिए जो उसको कैसे टैग लगे, कैसे एडजेक्टिव्स मिले, तो वो बोल्ड है, क्रिमिनल है, होमलेस है, मंक है, ऐसे एडजेक्टिव मिले। तो नेल्सन मंडेला जो थे वो एक फ्राइटन यंग मैन थे, पर वो उसे बोल्ड बनने पर मजबूर किया गया। वो एक लॉ अबाइडिंग मैन थे, फिर तो उसे क्रिमिनल बना गया। एक नेल्सन मंडेला एक फैमिली लविंग पर्सन थे, फिर भी वो विदाउट होम रहे, और वो लाइफ लविंग मैन थे, फिर भी उसे मंक का टैग मिला, एडजेक्टिव्स मिले। तो नेल्सन मंडेला जो थे वो अपने पीपल को आज़ाद करवाने के लिए वो अपनी ऑब्लिगेशंस फुलफिल कर रहा था, अपनी कंट्री के लिए वो ऑब्लिगेशंस निभा रहा था। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. तो नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि मैं एक गुड मॉरल कैरेक्टर हूँ, जब मैं एक आम आदमी हूँ, पर मैं अपनी जो फ्रीडम्स है वो उसे आज़ाद करना चाहता हूँ। मेरे पीपल जो है वो भी पूरी तरह से आज़ाद नहीं है, तो मैं भी पूरी तरह से आज़ाद नहीं हूँ। फ्रीडम इज़ इनविजिबल, द चेन एंड any one of my people were the chains on all of them, the chain on all of my people were the chain on me. तो फ्रीडम इज़ इनविजिबल, तो फ्रीडम कैसी थी? इनविजिबल थी। तो जो सारी रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी उसके पीपल्स के ऊपर, और वो उस चेन में बंधे हुए थे। तो ये जो चेन उसके पीपल के ऊपर होती है, तो वो चेन मेरे ऊपर भी लगी हुई है। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. तो ऑपरेसर और ऑपरेसेड, तो ऑपरेसर कौन होता है? जो अत्याचार करता है। ओके, तो ऑपरेस करता है वो, तो इसे ऑपरेसर मीन्स वाइट पीपल, और ऑपरेसेड जो अत्याचार सहता है वो मीन्स ब्लैक पीपल। तो आई न्यू, मुझे पता है कि जो ऑपरेसर है उसको भी हमें लिबरेट करना है, फ्री करना है, और जो ऑपरेसेड हो रहा है उसे भी हमें फ्री करना है। तो बोथ पीपल जो है वो दोनों को हमें लिबरेट करना है, आज़ाद करना है, इस सिस्टम से दूर करना है। कि अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार ऑफ प्रेजुडाइज एंड नैरो माइंडनेस। प्रेजुडाइज मीन्स अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीजन, मीन्स पक्षपात करना। ओके, तो प्रिजनर्स जो, तो विदाउट एनी रीजन वो किसी पीपल को हेट करता है, हेट्रेड में रहता है। तो हमें इस सिस्टम को दूर करना है। और
ये जो होते हैं वो ज़्यादा नैरो माइंडेड होते हैं। तो I am not truly free if I am taking away someone else's freedom, just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. तो I am not truly free, हम पूरी तरह से फ्री नहीं, क्योंकि जो अपनी फ्रीडम को कोई छीन ले, एज वेल एज कोई अपनी फ्रीडम को छीन ले, एज surely as I am not free when my freedom is taken from me. तो कोई फ्रीडम छीन रहा है या कोई आज़ाद नहीं है, वो तो सही है, जिसकी फ्रीडम छीनी जा रही है वो आज़ाद है ही नहीं। ठीक है, तो वो पर्सन जो है ऑपरेसर और ऑपरेसेड दोनों एक ही नाव में तैर रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं हम। तो द ऑपरेसेड एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रॉबेड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। और ऑपरेसर और ऑपरेसेड जो अत्याचार सह रहा है और अत्याचार कर रहा है, दोनों की इंसानियत जो है वो अपनी इंसानियत खो चुके हैं। रॉबेड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी मीन्स इंसानियत खो देना, तो दोनों पर्सन हैं वो अपनी इंसानियत खो चुके हैं। तो इस लेसन में नेल्सन मंडेला ने हमें बहुत कुछ सिखाया, बहुत ऐसी बात बताई जिसे हम कुछ सीख सकें। तो यहाँ पे हमारा लेसन जो है कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।